लेके चलते जहां पर प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। Captains of Indian industry, business leaders, tax and audit professionals, officers of the Income Tax Department. Today is a landmark day in the history of tax administration. The vision of the Prime Minister is to empower the taxpayers to provide a transparent system and to honor the honest taxpayer. To realize this vision, the CBDT, the Central Board for Direct Taxation, has given a framework and put in place a system in the form of this platform. A transparent, efficient, and accountable tax administration is what this platform brings in. It uses technology, data analytics, and also uses artificial intelligence. What does this mean to the taxpayer in the country? It eases compliance burden. It brings in fair, objective, and a just system. There shall not be any physical interface between the department and the taxpayer, and to an extent, it shall bring in certainty of information. The IT department, the Income Tax Department, has undertaken several reforms which in a normal era would have been remembered as a significant milestone. Last year, it brought down the corporate tax from 30 to 22% for all the manufacturing existing units. It also brought it down to introduced 15% taxation for new manufacturing companies. It removed the dividend distribution tax. It also simplified the personal income tax structure and gave a complete framework of option with simplified and reduced tax structure for those who did not want exemptions or deductions. In other words, taxpayers were given a choice, an option. The Income Tax Department also provided the option for cooperatives to pay taxes at a concessional rate. So, in order to provide accountability, the department has also committed itself for providing document identification number, the DIN as we come to call it. And this is for all its communications. Without the DIN, the document identification number, a document emanating from the Income Tax Department shall be invalid. It also, therefore, provides traceability and authenticity to the communication of the department with its taxpayers. Pre-filled forms are also being provided to taxpayers so that the high-value financial transactions are recorded somewhere, and it enables the taxpayer to see those information visible upfront even as he wants to comply by paying the taxes. Honorable Prime Minister, the department is also hand-holding taxpayers and helping them to understand how to use pre-filled forms, and therefore it's not just introducing a transparent system, but also is helping the taxpayers to be able to understand and comply. Honorable Prime Minister, under your guidance, we also brought in the Vivad Se Vishwas scheme, through which we wanted to bring in a closure to all the pending tax disputes. That has received a lot of good response from the taxpayers. Respected Prime Minister, the IT department has also taken up several measures to provide digital transaction and electronic modes of payments for the taxpayers. During the COVID pandemic, the department also provided relief to the taxpayers by extending statutory timelines
for filing of returns. The department also has released the refunds which are due to the taxpayers in an expeditious manner. Lastly, Honorable Prime Minister, the officers and the staff of IT department, Income Tax Department, deserve our appreciation for their untiring efforts to bring reality to your vision. I would like to make a special mention to all the Income Tax Gazetted Officers Association members who this morning have sent a message to the Finance Secretary, a message of commitment, a message of their commitment to see that this vision of the Honorable Prime Minister is realized without any glitches. Thank you very much. धन्यवाद वित्त मंत्री जी। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से आदरपूर्वक निवेदन करता हूं कि वे कृपया ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म का लोकार्पण करें। ईमानदार टैक्स पेयरों को सम्मानित किया जा रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र अब मैं मोदी आपसे अनुरोध करूंगा सम्मानित किया कि आप अपने विचारों से हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी। नमस्ते जी। देश में चल रहा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का सिलसिला आज एक नए पड़ाव पर पहुंचा है। ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, ऑनरिंग द ऑनेस्ट, 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की इस नई व्यवस्था का आज लोकार्पण किया गया है। इस प्लेटफॉर्म में फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म्स हैं। फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर आज से ही लागू हो गए हैं, जबकि फेसलेस अपील की सुविधा 25 सितंबर यानी दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन से पूरे देश भर में नागरिकों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। अब टैक्स सिस्टम भले ही फेसलेस हो रहा है, लेकिन टैक्स पेयर को ये फेयरनेस और फियरलेसनेस का विश्वास देने वाला है। ये सभी टैक्स पेयर्स को इस महत्वपूर्ण तोहफे के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और इनकम टैक्स विभाग के सभी अधिकारियों को, हर छोटे मोटे कर्मचारी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, बीते 6 वर्ष में हमारा फोकस रहा है बैंकिंग द अनबैंक, सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड और फंडिंग द अनफंडेड,
आज एक तरह से एक नई यात्रा शुरू हो रही है। ऑनरिंग द ऑनेस्ट, ईमानदार का सम्मान। देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब देश के ईमानदार टैक्स पेयर का जीवन आसान बनता है, वो आगे बढ़ता है, तो देश का भी विकास होता है, देश भी आगे बढ़ता है। साथियों, आज से शुरू हो रही नई व्यवस्थाएं, नई सुविधाएं, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, इसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है। ये देशवासियों के जीवन से सरकार को, सरकार के दखल को कम करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। साथियों, आज हर नियम कानून को, हर पॉलिसी को प्रोसेस और पावर सेंट्रिक अप्रोच से बाहर निकालकर उसको पीपल सेंट्रिक और पब्लिक फ्रेंडली बनाने पर बल दिया जा रहा है। ये नए भारत के नए गवर्नेंस मॉडल का प्रयोग है और इसके सुखद परिणाम भी देश को मिल रहे हैं। आज हर किसी को ये एहसास हुआ है कि शॉर्टकट्स ठीक नहीं है। और हमारे यहां तो रेलवे स्टेशन पे लिखा जाता है, शॉर्टकट विल यू कट यू शॉर्ट। गलत तौर तरीके अपनाना सही नहीं है। वो दौर अब पीछे चला गया है। अब देश में माहौल इस ओर आगे बढ़ रहा है कि कर्तव्य भाव को सर्वोपरि रखते हुए सारे काम होने चाहिए। सवाल यह है कि ये बदलाव आखिर कैसे आ रहा है? क्या ये सिर्फ सख्ती से आया है? क्या ये सिर्फ सजा देने से आया है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके अगर मोटे मोटे तौर पर मैं कहूं तो 4 बड़े कारण हैं। पहला, पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस। जब पॉलिसी स्पष्ट होती है तो ग्रे एरियाज मिनिमम हो जाते हैं और इस कारण व्यापार में, बिजनेस में और सरकार के और निर्णयों में भी डिस्क्रिशन की गुंजाइश कम हो जाती है। दूसरा, सामान्य जन की ईमानदारी पर विश्वास। तीसरा, सरकारी सिस्टम में ह्यूमन इंटरफेस को सीमित करके टेक्नोलॉजी का बड़े स्तर पर उपयोग। आज सरकारी खरीद हो, सरकारी टेंडर हो या सरकारी सेवाओं की डिलीवरी, सब जगह टैग इंटरफेस सर्विस दे रहे हैं। और चौथा, हमारी जो सरकारी मशीनरी है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसमें एफिशिएंसी, इंटीग्रिटी और सेंसिटिविटी के गुणों को रिवॉर्ड किया जा रहा है, पुरस्कृत किया जा रहा है। साथियों, एक दौर था जब हमारे यहां रिफॉर्म्स की बहुत बातें होती थी। कभी मजबूरी में कुछ फैसले लिए जाते थे, कभी दबाव में कुछ फैसले हो जाते थे, तो उन्हें रिफॉर्म कह दिया जाता था। इस कारण
इच्छित परिणाम नहीं मिलते थे। अब ये सोच और अप्रोच दोनों बदल गई है। हमारे लिए रिफॉर्म का मतलब है रिफॉर्म नीति आधारित हो, टुकड़ों में नहीं हो, होलिस्टिक हो और एक रिफॉर्म दूसरे रिफॉर्म का आधार बने, नए रिफॉर्म का मार्ग बनाए। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार रिफॉर्म करके रुक गए। ये निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है। बीते कुछ वर्षों में देश में 1,500 से ज्यादा कानूनों को समाप्त किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भारत आज से कुछ साल पहले 134वें नंबर पर था। आज भारत की रैंकिंग 63 है। रैंकिंग में इतने बड़े बदलाव के पीछे अनेकों रिफॉर्म्स हैं, अनेकों नियमों कानूनों में बड़े परिवर्तन है। रिफॉर्म्स के प्रति भारत की इसी प्रतिबद्धता को देखकर विदेशी निवेशकों का विश्वास भी भारत पर लगातार बढ़ रहा है। कोरोना के इस संकट के समय भी भारत में रिकॉर्ड एफडीआई का आना इसी का उदाहरण है। साथियों, भारत के टैक्स सिस्टम में फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत इसलिए थी क्योंकि हमारा आज का ये सिस्टम गुलामी के कालखंड में बना और फिर धीरे धीरे इवॉल्व हुआ। तो ईमानदार टैक्स पेयर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित कर रहे थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। आगे बढ़ते हैं। चित्रकूट में लगातार बारिश होने से नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। कल से आज तक में मूसलाधार बारिश होने से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। पुलिस रामघाट के सभी दुकानदारों और लोगों से माइक लगाकर दुकान और मकान खाली करवाते नजर आई जो नदी के किनारे रहते हैं। अगर इसी तरह बारिश होती रही तो जल्द ही नदियां खतरे के निशान को पार कर देंगी। और मानिकपुर क्षेत्र में भी पहाड़ों में 24 घंटे से लगातार बारिश होने की वजह से छोटी नदियां उफान पर हैं। धीरे धीरे जितने दुकानदार हैं, व्यापारी लोग हैं, ये अपना रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।